नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित और आप देख रहे हैं कारा न्यूज। उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति नागपुर उच्च न्यायालय द्वारा साल में 4 बार लोक अदालत का कामकाज किया जाता है, जिससे हजारों लोगों को फायदा होकर उनकी पेंडिंग केसेस का लोक अदालत द्वारा निपटारा हो रहा है, जिसके चलते नागपुर खंडपीठ सभागृह में सभी माननीय न्यायाधीशों के हाथों सत्कार का कार्यक्रम रखा गया। हमारे संवाददाता संजय मीरे इनकी मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ सभागृह से पेश है ये ग्राउंड रिपोर्ट। लोक अदालत जो है अपने आप में एक है, क्योंकि लोक अदालत से लोगों को अब न्याय मिलने लगा है और इस समय में कारा न्यूज की टीम मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ के उस सभागृह में मौजूद है। Nagpur. I also welcome the insurance companies, their officers, advocates and panel lawyers. Now first of all, I would like to mention here that our Honorable Lordship Shri A.S. Chandurkar sir, he being the chairman of our legal aid committee, has pleased to sanction to arrange this felicitation program. Now the program is having dual purpose. First of all, to appreciate the participants who have contributed for success of our previous Lok Adalat and motivation for others to keep more number of cases in our forthcoming Lok Adalat, which is scheduled to be held on 9th of September 2023. In the state of Maharashtra in settlement of legal disputes and legal matters. It is just possible because of the guidance of Shri Honorable Justice Atul Chandurkar sir, who time to time advise and encourage to promote the activities held under the banner of High Court Legal Service Subcommittee. It is also possible because of the hard work and continuous effort of Shri Anil Sharma and the persuasion of panel members and advocates who worked hard and responded positively for achieving the target. I also congratulate various financial institutions, insurance companies and government undertakings who responded positively and came forward for resolution of disputes in the Lok Adalat. Shri Justice Atul Chandurkar, Honorable Shri Justice Rohit Dev sir, Honorable Judges of Bombay High Court at Nagpur bench, our Bureau President Mr. Atul Pandey sir, Secretary of the High Court Legal Aid Subcommittee Mr. Anil Sharma sir, the in-charge government pleader Mr. Anand Deshpande sir, Deputy Solicitor General of India Mr. Nandesh Deshpande sir, Member of Bar Council of Maharashtra and Goa Shri Parijat Pandey sir, my elder brothers, my respected seniors, my dear brothers and sisters. At the outset, I must congratulate the High Court Legal Aid Subcommittee for achieving the desired goal and securing the first position in the state of Maharashtra in disposal of the cases in Lok Adalat. Secretary of the High Court Legal Services Subcommittee, President and Secretary of the High Court Bar Association, Shri Pandey, Member Bar Council of Maharashtra and Goa, Learned Deputy Solicitor General, as well as Shri Deshpande, Learned in-charge government pleader, all my friends at the bar, members of various corporations and companies who have attended today's function. We have gathered here today as a mark of appreciation and to place on record the efforts that have been taken by all of you that has resulted in a number of matters being disposed of at the last Lok Adalat. We have crossed the figure of 100 with the active support of all of you, and I am sure that in the next coming Lok Adalats, those figures will surely increase. I would request all of you to continue contributing in your own way and helping in disposal of cases at the Lok Adalat. To extend my vote of thanks, firstly I would like to extend my sincere vote of thanks to Honorable Justice Atul Chandurkar for his valuable presence and valuable guidance for past Lok Adalat as well as for coming Lok Adalat, and encouraging us for more disposal in coming Lok Adalat. I extend my sincere thanks to all the honorable judges on dais for appreciating us and all the stakeholders for recent work they done in last Lok Adalat and encouraging us for coming Lok Adalat
to give more efforts for disposal of more cases in Kangi Lok Adalat. I extend my thanks to respected Atul Pandey sir and Amol Datta sir, High Court Bar Association President and Secretary High Court Bar Association, all his colleague and esteemed member of the High Court Bar Association, all the stakeholders of the different insurance companies, different authorities. दर्शकों नमस्कार। इस समय में कारा न्यूज़ की टीम उच्च न्यायालय विधि समिति के ओर से किए जाने वाले उस प्रोग्राम में है जिसका नाम था लोक अदालत। लोक अदालत का ये शानदार कारवा पिछले 36 वर्षों से चल रहा है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी और जब से उच्च न्यायालय के सचिव बने शर्मा जी, तब से लेकर अब तक के कई केसेस का निपटारा हो चुका है, जिसका लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा भी हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए शहर के कई ऐसी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिनके काफ़ी डिस्प्यूट थे, लेकिन इस लोक अदालत के माध्यम से उन्हें भी न्याय मिला है। आप थोड़ा देख सकते कि ये वही तमाम लोग हैं जिनका आज यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है। बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग दिखाई देते हैं। खासतौर पे अनिल कुमार शर्मा जी है जो कि जिला न्यायाधीश तथा सचिव उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति खंडपीठ नागपुर से है। तो वही इंश्योरेंस कंपनी के तमाम महिलाएं हैं और कई ऐसे कंपनियों के अधिकारी भी बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद है। तो आइए हम आपको बता देना चाहते हैं कि साल भर में 4 बार ये लोक अदालत ली जाती है। आखिरकार ये लोक अदालत लेने के पीछे का क्या उद्देश्य है, कितना फायदा आए दिन इस शहर के नागरिकों को हो रहा है, आइए हम सीधा रुक करना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ में अनिल कुमार शर्मा जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, ये बताइए जिस प्रकार से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण है यह प्रोग्राम? एक्चुअली ये जो कार्यक्रम हमने लिया है इसका उद्देश्य ये है कि फेलिसिटेशन एंड मोटिवेशन, मतलब जिन्होंने हमारी पिछली लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा केसेस रख करके सेटलमेंट किया था, ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज के ऑफिसर्स को हमने फेलिसिट करना है। और जो हमारी आने वाली सितंबर की लोक अदालत है 9 तारीख की, उसमें भी वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा केसेस रखें, इसलिए उनको मोटिवेट कर रहे हैं। अभी हमारे साथ में वैशाली थोरात मैडम यहाँ पे उपस्थित हैं। पिछली लोक अदालत में 51 केसेस का उन्होंने डिस्पोजल दिया था एंड इट वाज हाईएस्ट केस रिगार्डिंग नंबर ऑफ केसेस। तो इस बार भी हम अपेक्षा कर रहे हैं कि मैडम इस बार हमको 51 की जगह 101 केसेस देंगी। और दूसरी बात, जो हमारे दूसरे हल्दर मैडम है, नीलांबरी मेश्राम है और बाकी हमारे जो अर्नेजा साहब हैं और बाकी जो हमारे जो भी एडवोकेट्स हैं, सोनिया गजबी हैं, निशांती हैं, ये सब लोगों का पार्टिसिपेशन रहता है लोक अदालत में। और कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि बाबा अब जो हम लोग इसके आगे और लोक अदालत करने वाले हैं ये पिछली बार से और ज़्यादा अच्छी हो और उसमें ज़्यादा केसेस का सेटलमेंट हो, ये हमारा उद्देश्य है। खासतौर पे यहाँ पे जिस प्रकार से जो केसेस आती है उनके बीच जो मनमुटाव रहता है या कहीं ना कहीं अड़िंगा डाला जाता है, समझौता नहीं होता, ऐसे में लोक अदालत के माध्यम से ये केसेस को पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए या ये कहें कि इसे आसान बनाने के लिए क्या क्या उपाय योजना की जाती है? जनरली कैसा होता है कि अगर कोर्ट में केस लड़ते रहे तो कॉम्प्रोमाइज़ का कुछ उसमें सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो हम लोगों ने जो लोक अदालत का पैनल है हमारा, इस पे हम लोग प्री सीटिंग मीटिंग लेते हैं जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज के सभी ऑफिसर्स और जो उनके पैनल है वो आते हैं। तो हम लोग नेगोशिएशन करते हैं उसमें कि देखो सर ये रेशो है, इस हिसाब से आपको कॉम्प्रोमाइज़ में अगर आप करते हैं तो आपकी कंपनी का भी फ़ायदा है और लिटिगेंट्स का भी फ़ायदा है। तो एक जगह बैठ करके म्यूचुअल सेटलमेंट होता है केसेस का और उसमें निपटारा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपस में बैठ के थोड़ा सा कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए तो यकीनन होता है, वरना तारीख के ऊपर में तारीख ये तो ठहरी हुई होती है। इस समय हमारे साथ में इस बॉम्बे हाई कोर्ट के एक बेहतरीन एंकर भी जिसे कहेंगे, अधिवक्ता भी है, सोनल गजबी हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। सोनल जी, कैसा लगा आज का प्रोग्राम? जिस प्रकार से मुख्य न्यायाधीश इन्होंने जो बातचीत की है, तमाम लोगों को आज यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया गया और कई कामकाज में आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हो, क्या आपका तजुर्बा है, क्या कहना चाहती हो आप? आज का जो फेलिसिटेशन प्रोग्राम है इसका सारा श्रेय सबसे पहले तो ऑनरेबल सेक्रेटरी श्री अनिल कुमार शर्मा, हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज सब कमेटी नागपुर बेंच नागपुर, इन्हीं को जाता है। क्योंकि नेशनल लोक अदालत में जो आज सबसे ज़्यादा रेशो है
ज़्यादा से ज़्यादा केसेस सेटल करने का, दैट इज़ द 102 केसेस जो सेटल हुए हैं। और इसमें काफ़ी जो लिटिगेंट्स हैं उनका समय बचा है, उनका पैसा बचा है। और ये सब आज जो यहाँ पर ये प्रोग्राम फेलिसिटेशन का हमने जो किया है, ये सिर्फ और सिर्फ अनिल कुमार शर्मा सर के बदौलत हुआ है। यहाँ पर जितने भी इंश्योरेंस कंपनी आई हैं या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, इंश्योरेंस कंपनीज़ है, यहाँ पे जो ऑफिसर्स आए हैं जिन्होंने अपना जो योगदान दिया है, जिन्होंने जो डेडिकेशन दिया है अपना ये मैटर सेटल करने के लिए, उनको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ मैं कि उनके डेडिकेशन की वजह से, उनके हार्डवर्क की वजह से आज ये फेलिसिटेशन प्रोग्राम हो पाया है। और इनका फेलिसिटेशन प्रोग्राम वो इसीलिए लिया गया है ताकि वो आगे भी जो ज़्यादा से ज़्यादा केसेस है वो सेटल कर सके और रेशो ये ज़्यादा और बढ़ा सके। और इस मौके पे जब लॉर्डशिप और लेडीशिप के हाथों से इनको जो सत्कार मूर्ति है, इनको जो सर्टिफिकेट्स ऑफ एप्रिसिएशन मिले हैं, उनके वजह से इनका जो इंस्पिरेशन और इनका जो मोटिवेशन है वो और बढ़ा है और आगे भी ये इस काम में और मदद करेंगे। बाकी और जो हम जैसे पैनल लॉयर्स हैं उनको सर्टिफिकेट्स दिए हैं लॉर्डशिप के हाथों, उससे हमारा भी जो मोटिवेशन है और बढ़ा है, हम भी इंस्पायर हुए, हम और ज़्यादा अच्छे से ये नेशनल लोक अदालत सक्सेस करने के लिए काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, करने वालों के लिए एक उजाला होता है, एक नया रास्ता मिलता है, मंजिल भी उन्हें मिलती है जो इसकी खोज में लगा रहता है। और कुछ अच्छा करने के लिए कुछ कामकाज भी तो करना पड़ता है और यही तमाम कामकाज आज ये पूरी टीम करते हुए नजर आ रही है। और एक शहर के मशहूर अधिवक्ता भी हमारे साथ हैं, उनका क्या कहना है ये भी जानना चाहेंगे। क्या कहना चाहते हो सर? मेरा ऐसा बोलना है, ये कोर्ट की लड़ाई ईगो की लड़ाई होती है। दो पार्टीज अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, हार जीत के लिए कोर्ट में आते हैं। अगर ईगो साइड में कर दोगे और ये कमेटी का अगर आप हेल्प मांगोगे तो डेफिनेटली ये कमेटी इतनी सक्षम है कि आपको कन्विंस कर सकती है कि लड़ने में कोई मतलब नहीं। तो ये एक माध्यम है, ये माध्यम को आपने यूटिलाइजेशन करना चाहिए और ये माध्यम के ज़रिए आपको अच्छी टीम मिलेंगी जो आपका एक जो भी आपका डिस्प्यूट है दे कैन सॉल्व इट। तो ये माध्यम में हर कोई यहाँ पे आए और नागपुर का नाम इसमें रोशन हो और आगे तक के नाम जाए, सो दैट नागपुर के लिए, नागपुर की जनता को एक ये माध्यम से न्याय मिले। और यही मेरी आशा है सब लोग इस कमेटी को अप्रोच करें करके। बिल्कुल बिल्कुल। इस समय हमारे साथ में संजय अर्नेजा भी है, उनसे भी जानना चाहेंगे इंश्योरेंस कंपनी के। अर्नेजा जी, कैसा महसूस कर रहे हो जिस प्रकार से आज आपका जो सम्मान किया गया है लोक अदालत को लेके, कितनी राहत महसूस कर रहे हैं हो आप? आपका कहना बिल्कुल सही है कि लोक अदालत के माध्यम से जो भी केसेस सेटल होते हैं उसमें एक अलग ही किस्म का जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का 117 साल का गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, श्रीमती सुचिता गुप्ता जी जो हमारी अध्यक्ष, सह महाप्रबंधक महोदय जी, मिस्टर गोतवाल, श्री टी बबूपाल जी के नेतृत्व में, और हमारे लोकल जो नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय के हमारे प्रबंधक हैं श्री KGB राव के नेतृत्व में, और सबसे प्रमुख अहम हमारे अनिल शर्मा जी की गाइडेंस में जो हम सफल हो पाए हैं। और हमने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस हम लोक अदालत में सेटल करें और आगे भी हम प्रयासरत रहेंगे। संजय अग्रवाल जी, आप भी हमारे साथ में हो, क्या कहना चाहते हो? मेरा आपसे मुलाकात शायद तीसरी बार हो रहा है। बिल्कुल, हम हमेशा लोक अदालत में मिलते हैं आपको। हमारे जो चेयरमैन सर हैं सत्यजीत त्रिपाठी जी, और हमारे जो जनरल मैनेजर सर हैं नरेश कुमार सिद्धू जी, उनकी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन से हम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के ब्याह पे इतने केसेस लोक अदालत में पेश करने के लिए और सेटल करने के लिए कामयाब हुए। हमारी कोशिश आगे भी यही रहेगी कि मैक्सिमम केस हम लोक अदालत और हाई कोर्ट में या नागपुर में सेटल करें। बिल्कुल, इंश्योरेंस बोले तो एक बहुत अच्छा काम है, लेकिन आए दिन जिस प्रकार से जो मैटर काफ़ी पेंडिंग भी होते हैं, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें राहत भी नहीं मिलती है, और आपस में क्लाइंट का जो टकराव की जो स्थिति, कंपनी वर्सेस क्लाइंट, ऐसा जो होता है, लोक अदालत कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए? बहुत महत्वपूर्ण है सर। और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने इस लोक अदालत में हाईएस्ट केसेस रिजॉल्व किए हैं और आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी। और साथ ही मैं हाई कोर्ट नागपुर लीगल एड कमेटी का धन्यवाद देती हूँ जो आज उन्होंने हमको अप्रिशिएट किया है। कारा न्यूज़ ने हमें यहाँ पर कवरेज दिया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। कहाँ से आप क्या कहना चाहते हो? सर, मैं ओरिएंटल इंश्योरेंस से असिस्टेंट मैनेजर श्रुणाल गढ़पाले हूँ। हमने पिछले लोक अदालत में 22 केसेस किए थे। उस वक्त भी फेलिसिटेशन मिला था, तो उससे प्रोत्साहित होकर इस बार हमने 54 केसेस किए।
इस बार भी फेलिसिटेशन मिला, अगली बार इससे ज़्यादा केसेस करेंगे और लोक अदालत को सफल बनाएंगे, यही कहना चाहता हूँ मैं। तो दर्शकों, हमने यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में आए हुए तमाम LIC के अधिकारी यहाँ पे थे, उनके अधिवक्ता थे और तमाम लोगों से हमने बातचीत की। बातचीत में यही सॉल्यूशन निकला है कि लोक अदालत अपने आप में एक है, क्योंकि लोक अदालत से कई ऐसी जो मतभिन्नताएं हैं, जो आपस में मनमुटाव है, वो दूर होने के लिए काफ़ी ये कार्यक्रम कारगर साबित हो रहा है। इतना नहीं तो समय की बचत भी हो रही है। नहीं तो कई ऐसे केसेस देखे जाते हैं कि लड़ाई लड़ते लड़ते लड़ने वाले खुद ऊपर चले जाते हैं, उन्हें न्याय नहीं मिलता, जिसके चलते उनके जो परिवार वाले हैं उन्हें फिर से संघर्ष स्ट्रगल करने के लिए फिर कोर्ट के तरफ दौड़ना पड़ता है। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए 1987 में इसकी लोक अदालत की स्थापना हुई। ये 36वां साल है। पिछले 36 सालों में कई केसेस का निपटारा तो यकीनन किया गया, लेकिन जिस प्रकार से जब मुंबई उच्च न्यायालय के जो हाईकोर्ट के जो सचिव जब से बने अनिल कुमार शर्मा जी, तो काफ़ी केसेस का निपटारा बहुत जल्द हुआ है, जल्द से जल्द हुआ है। इसकी वजह यह है कि काम करने का एक स्टाइल जो है वो एक अद्भुत है, जिसके चलते लोगों को न्याय मिला है और आज लोग लोक अदालत से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। कारा न्यूज़ ने भी ये तमाम लोक अदालत की जानकारी हमारे लाखों दर्शकों तक पहुंचाई, इसलिए आज के कार्यक्रम के मुख्य न्यायाधीशों के हाथों भी कारा न्यूज़ का भी एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देके उनका भी सम्मान किया गया है। ये मात्र कारा न्यूज़ का सम्मान नहीं, तो वो तमाम लाखों दर्शकों का, कारा न्यूज़ के दर्शकों का सम्मान है। ऐसे कहा तो बड़ी बात नहीं हो सकती। मुंबई उच्च न्यायालय के इस सभागृह से कैमरा पर्सन विशाल और विलास के साथ संजय मिरक, कारा न्यूज़, नागपुर।